Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much everybody for joining me. बहुत शुक्रिया आपका. आज मेरा guest है. He's a former Pakistan Test cricketer. He played one Test match, 3 ODIs. He had a fantastic domestic career, also playing in Pakistan domestic circuit for many, many years. He played in England, very famous in English club cricket also. He's coached at Lancashire. He's also the current German national coach. He's done scouting for the ECB for the men's national team and also for the England under-19s team. He's worked for Lancashire as well, so a very impressive CV. Atiq Zaman. Atiq bhai, assalamu alaikum. Hope you're well, brother. वालेकुम सलाम साजिद भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? I'm good. Atiq bhai, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Let's get started first, Atiq bhai. Germany national coach. जर्मनी के बारे में बताओ. क्रिकेट खेलते हैं वो? हम लोग तो सिर्फ समझते कि they play football and hockey. नहीं, मैं भी जब मुझे जर्मनी से ईमेल आई थी मुझे उनके वाइस प्रेसिडेंट की, तो मैं भी समझा कि कोई मजाक कर रहा है. And then I thought somebody just taking a mic and having a laugh, and because there was no signature underneath the email. So when the signature doesn't come, it's very hard to realize it's an authentic email or not. So I straight away give my number to the person, and I thought he's never going to call me if it's not legit. So he called me in 15 minutes time, and then we had a very good conversation for about half an hour, 45 minutes, and then we agreed. And that was very quick. I was working in Ipswich as a head of cricket of St. Joseph College that time, and I wanted to move back to Bolton because my family was living here. So Germany was that was my first communication with him, and I didn't have much information about Germany that time. I was exactly the same in shock like you were. Like Germany used to known in football and hockey quite well, or in Olympics, on athletics, where people know Germany, but not in cricket. But when I done a research, actually, Germany has got a very good side, and then they've got some fantastic players. They've got 4 or 5 current county players who represent German national team. One play for Northampton, Justin Broad, and Matthew Montgomery for Nottinghamshire, Dieter Klein for Leicester, Joshua Van Eden, he plays for Titans. So we've got fantastic bunch of mixed player. And then we are number 35 on the world ranking at the minute of T20I. So they've got T20I status. So they played more than, I think, 50, 60 T20I so far. And when I joined the team, the ranking, they were on 37 that time. And we moved to 32 during my tenure. But unfortunately, we lost one series against Guernsey at 2-1 last year in Holland. And that caused us the position 3 ranking down. So we went to 35. So our target is to get under 30 this year, and hopefully we'll achieve that. So, I had a very good experience. I had 1 year fantastic with them, and good thing about it, there are a lot of talented players. Obviously, a lot of asylum seekers from Afghanistan and all that. They are heavily involved in cricket over there. And, when you talk about Asian, Indian, Pakistani, Afghani, when you said Indian, Pakistani, Afghani cricket players there, you definitely know there's going to be talent there. So I took open trials last year. I went every part of the every region of Germany, and watch every single player I could have. And we had a group of 25 players when I joined in. Now we've got a group of 40 players. So yeah, the talent-wise, Germany is a very good side. They are very raw. Some of established players there, like couple of Pakistani first-class players, for example, Faisal Mubashir, who used to play for State Bank, and Bawalpur, he plays for us. Musaddiq Ahmed, who used to play for KPK, Peshawar Zalmi, he's gonna be eligible hopefully this year, and he'll play for Germany. So we've got very good squad, and hopefully we'll carry on developing the players. The infrastructure is a little bit questionable because we haven't got any turf pitches in Germany. That's the negative side of it, but we are going into the right direction, especially since cricket is become part of Olympics. We become a member of Team Deutschland, and now Team Deutschland going to invest and help us out to
try to get into the Olympic setup and win the medal for Germany. Are you still coaching for the ECB? I know in the introduction I mentioned it, under 19 and the national team as well. Yeah, I've been with ECB for last 2 years. I was their betting scout for England national side, and it is fantastic. I'm still involved with them, but this year, because I've been asking ECB about let me have some sort of coaching experience, let me develop as a coach, because I've just completed my level 4 through ECB, and I wanted to get involved in a system with ECB in coaching. So my boss, who is the head of talent development, David Court, he offered me another role, which is under 19 scout, not just betting overall, especially for the North region. And also I will be involved in Super 4 tournament, which happens in Loughborough. So I will be one of the team assistant coach to start with. So it will be a great opportunity for me. And I just put my betting scout England national team on site for a bit and focusing on young talent, because last 2 years I've been doing it. And I felt like I'm not, justifying. I don't want to say a good thing about myself, but I see a lot of players. I work with them. I develop them, and they played higher level cricket. Some of them playing county first 11 cricket. Some have played for Pakistan under 19. So I feel like my expertise will get better utilized in a grassroots and a little bit below level under 19. So I will see the different player every year, and I will go and scout them. And then if I help ECB to build up the good side, that will be my satisfaction. So I took that role and I put my England betting scouting on the side for now, but I'm still going to do a few games if I've got time available. But it's good flexibility. I can do those works around my German commitment, because in Germany I've got massive commitment. Summer coming in, and we playing World Cup qualifiers, sub-regional this year. Last year we played World Cup qualifiers where we played in Scotland against Ireland, Scotland, Jersey, Italy, Denmark, and Austria. So out of 7 teams, 2 supposed to be qualified for a World Cup T20 in West Indies and America. Unfortunately, we couldn't qualify. We were third until last game, and last game we lost, and we come fourth on that tournament. But we had a fantastic experience. So this year, is because it's a 2-year cycle of World Cup, we have to play sub-regional, and we have to win the sub-regional to qualify for a World Cup qualifier next year. So this is our target this year, to play those sub-regional, trying to develop the team, helping them out, doing a lot of coaching sessions. We've got Elite League coming in, then we've got series against Netherlands A, and we've got series against Jersey, which will help us, doing our preparation for the big World Cup qualifier, which is held in Germany. Given your coaching experience, Atiq, why is it that in Pakistan cricket, the preference is always for overseas coaches instead of local Pakistani-born experienced coaches? The problem with Sajid भाई, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. तो Pakistani culture is we've got a complex with foreigners. I must say that. Okay. In the same time, there are very limited coaches in Pakistan who I can say they are very good coaches. They're not excellent, they're not world class, but they are good coaches. The first thing is we haven't got any coach development system in Pakistan. We have got coach education system. We are educating all the coaches. We are giving them degrees, level 2 coach, level 3, but we've got no plan how can we develop those coaches. So the coaches I have seen, because I worked with PCB around COVID time, which is 2020 to 2021. I had a 3-year contract. I left it in the middle due to some reasons. But our preference was that time we were trying to develop coaches. So we had a very good head of development, Grant Bradman, whose vision and whose ideas was good. We had a very good head of player development, which is Aklan Mushtaq. And we were all working together and trying to improve the coaching structure in Pakistan. Because we believe if you improve coaches, if you make world-class coaches, especially the local coaches, you can produce world-class players then. Otherwise, 1 or 2 coaches, they're not going to do it. We spend so much money on foreign coaches, but what they do, they come, they take heavy dollars with Pakistan Cricket Board, 2-3 years time, they go back. What achievement we have got, apart of Mickey Arthur, nobody have won the cup for Pakistan. Yeah. So why don't you not waste
money on, not waste money, invest money on your own coaches and develop them. We gave 1 and 2 coaches, for example, Abdur Rahman or somebody else, and then after that, they are disappeared. There is no consistency in Pakistan. So I'm coming back to your question because this is all linked. I've done all my education thinking I want to be best in my business, same as I want to be best as a player. Not because I just want to work for PCB or I want to get a job, I want to get 50, 60,000 pounds a year. No, it's not that. Because cricket is a passion. Cricket was never been a profession. It was in some point, but it was more as a passion. So once I retired, I had to be involved with cricket because that's the only thing, only skill I had. So I went to the coaching things. And knowing Pakistan culture, if you have not played 50 test matches, you would not get a gig in Pakistan as a coach. So I thought, there must be 2 ways. One is get yourself qualified, get yourself developed as a top level coach, and people will recognize you, identify you, and give you a chance. So I went on that route, and I done my level 1, level 2 in UK. Then level 3, it took me like 7 years to convince ECB because that's the recommendation course. You can't just go and participate. Your local county have to recommend you. So it took me about 6-7 years for Lancashire to convince Lancashire to recommend me. So anyway, when I was doing my level 3, I realized how bad coach I was. So I understood playing cricket, coaching cricket is 2 completely different way. Playing is all about myself and my team. Coaching is all about the players you're working with. And you have to understand those players. You have to learn. You have to have a skill to communicate with them. How do you give them feedback? When do you get them feedback? There are thousands of things which I was doing wrong. And I've seen other coaches doing wrong as well. So I've learned because I had eager to learn. I never had an ego. I put my ego on the side. And I thought, no, Atiq, you got to learn. And you're not on that level. You have to be on that level. So I've done my level 3. And then after that, when I was doing my level 3, we had a very good debate in Edinburgh when we were doing our course. There was quotation. There was a lot of quotes on the wall. There was one quote there by Jose Mourinho. He said, in 10 years' time, every football manager will be a sports scientist. So I didn't get it. What did he mean? So we had a debate. And then I realized how important for a head coach to understand the sports science, what the sports science is all about. You had 6 staff or 7 staff working with you. If you don't know about that topic, you wouldn't know how good the staff work and how efficient the staff is. So I made my mind up and I said, I need to do a degree in sports science. Knowing I've got no skills, no education skills. I had a 14-year education gap. English wasn't a barrier because my English was okay. I could understand, I can talk. But I never done academic education in the UK, academic writing or academic talking, and everything was completely different. But I had courage to do it. I went there, researched it, got an admission, luckily in University of Central Lancashire, and done my sports science degree. I didn't stop. Then I went and done masters in sports coaching on the recommendation of my tutor. So he wanted me to go even further. He wanted me to do PhD in elite coaching. But after 6 years, I had enough and I wanted to put all the learning and all the experience into the practice. And that's how my coaching journey started, especially on elite level. So this was my education background. And I've realized myself how I was a bad coach and I wanted to improve. In Pakistan, if you take it that way, I spoke to a lot of coaches. There are some good young coaches there who want to learn from you, but the senior coaches, they give me the impression that they know everything. They're not open to learn. If you try to have a debate with them, they take it as an offense. So it was very hard. So this kind of culture Pakistan possesses, and when you are in this kind of culture, when you haven't got a learning hat on, you will stay plateau and you will not improve. People will go above you and you will stay exactly the same place. You will stay traditional. You won't do nothing. So this is the problem Pakistan Cricket Board is having. Coaches don't want to improve. There is no accountability on that setup. If I'm doing a bad job, I will continuously do it as long as I've got my bosses very happy with me. I've got an outside influence, political influence.
I knew that nobody will move me from there. So I will be staying plateau and I will be just taking PCB's money, but I will not improve. And this is how we're suffering at the minute. And we got very limited coaches. Whoever chairman comes, who actually a proper chairman, they never trust Pakistan coaches because they know that they're not good enough, because they have not improved. They're exactly the same as they used to be. But I was a little bit different. I was because I grow as a coach in England. So I adopt the English mentality. So, you know, it helped me out. I understood coaching is not about us. Coaching is about the players. And, you know, you got to get the best out of the players. If players perform for you, you know, you will stay longer in your business and you will stay longer in that organization. So how are you going to achieve those things? Let's do it the way player wanted it, you know. So I changed my philosophy. I, you know, little bit understood this is how I should be working. And now I'm still learning. I'm still doing my stuff. Even though I've done a master's degree, I went there and done my level 4. That took me another 2 years. So I'm kind of person who wants to learn and improve. And, you know, PCB, वो कहते हैं ना कि एक कीड़ा होता है पाकिस्तानी, जो होता है, जो खेला हुआ होता है मुल्क के लिए, खास तौर पर जो पाकिस्तान में पैदा, उसको कीड़ा होता है, उसको कुछ भी हो, उसको पता भी हो कि अपने मुल्क में जो है ना क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बावजूद वो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो वो मैं उनमें से एक हूँ। तो वो मैंने पीसीबी के लिए जब काम किया था, मुझे पता था कि बैरियर्स होंगे और यू नो एंड ऑफ द डे नथिंग विल गेट अप्रिशिएटेड। मैं फिर भी गया, मैं अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के सफ़र किया मैंने, और यू नो कौड़ियों के भाव में जाके काम भी किया, मगर फिर वही बात हुई कि and then board changed, and then you've got new chairman comes in. He's got different mentality. He does not give, you know, he does not basically want to know Pakistani coaches at all. So मैंने कहा यार देखो, बात वही हो गई कि घर की मुर्गी जो होती है वो जितनी भी अच्छी हो जाती है ना, तो वो बंदा खा खा के उससे बेजार हो जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि बंदा वापस जाए। मुझे फाइनेंशियली कोई बेनिफिट नहीं था पीसीबी से, और बल्कि मुझे नुकसान ही हो रहा था। यू नो 6 लाख रुपए पाकिस्तानी इंग्लैंड के लिए कुछ भी नहीं होते जी। आपको भी पता है कि 6 लाख रुपए में क्या होता है, घर भी नहीं चलता है इंग्लैंड में। तो देन आई रियलाइज, यू नो, आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम एंड नोबडी इज गोना अप्रिशिएट इट, सो आई लेफ्ट। और बस ये है कि फिर जाके अफसोस होता है जब देखता हूँ कि हम लोग जो है अपने जो टॉप क्लास कोचेस हैं, यासिर अरफात भी वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर हु डन ईसीबी लेवल 4। ये सही है ना, यासिर अरफात था, फिर उसके बाद मैंने किया, और मेरे ख्याल से पीसी और कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है पाकिस्तान का जिसने ईसीबी से लेवल 4 किया। और एक आध फर्स्ट क्लास में अजहरुल्लाह है, जो नॉर्थहैम्पटन सॉरी यॉर्कशायर के लिए काम करता है। उसके अलावा आपके पास गिने चुने कोचेस हैं, मगर बात वही आ गई ना कि हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं लगाते बाहर से, और बल्कि कोई लगाता भी नहीं है ना। हमारा हर चीज में तो करप्शन है ना साजिद भाई, मीडिया तक में करप्शन है कि मीडिया न्यूज लगाने के लिए भी उनकी मन्नतें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। जब तक आप उनको डेली फोन नहीं करोगे, डेली सलाम दुआ नहीं करोगे, डेली उनको कार्ड नहीं भेजोगे उसके बर्थडे के और ये वो, तो वो आपके लिए लिखते नहीं है। जब आपके लिए कोई लिखेगा नहीं, तो अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उन्होंने जाके उनको ख्वाब में तो अतीक जमान नजर नहीं आएगा ना। उनको पता उसी वक्त चलेगा कि अतीक जमान की बातें मीडिया में चल रही होंगी, अखबार में नाम आ रहा होगा कि भाई एक पाकिस्तानी कोच भी है जिसने टेस्ट क्रिकेट खेली भी है, वो जर्मन नेशनल टीम के साथ काम कर रहा है, इंग्लैंड की नेशनल टीम के साथ काम कर रहा है, मगर पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं वो फायदेमंद है, क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको यूटिलाइज करना चाहता। तो उनको तो अवेयरनेस से नहीं होगी ना। तो ये मसला होता है साहिद भाई। बाकी और मेरी भी मेंटेलिटी ऐसी है कि यार मैं मेरी मेरी जो ईगो है ना, वो मेरे लिए नेगेटिव चली जाती है। मैं कभी किसी की खुशामद नहीं करना चाहता। मैंने आपसे भी कभी नहीं बोला कि मेरा इंटरव्यू कर लें, ठीक है ना। तो आपने मुझसे 1-2 दिन पहले आपसे बात हुई, तो देन यू सेड लेट्स डू इंटरव्यू। आई सेड नो, आई नेवर सेड नो टू एनीबॉडी आइदर। मगर मैं किसी से बोलता नहीं हूँ क्या कि मेरे लिए कर लो। तो मुझे अफसोस बस ये होता है कि लोगों को पता होता है भी है ना, तो वो दबा देते हैं पाकिस्तान में कि कहीं हमारे से ऊपर ना आ जाइए। और जब मैं पीसीबी में था, मेरी ख्वाहिश ये थी कि यार मैं लीड फील्डिंग विकेट कीपर कोच था पाकिस्तान का। तो माय इंटेंशन वाज टू डेवलप बेस्ट कोचेस अराउंड, क्योंकि
I can't coach every under-19 Pakistan player. I can't coach every senior Pakistan cricket player, and I can't coach every women's Pakistan cricket player. So I need to develop players who can actually coach the way I want them to coach. So कोचिंग सिस्टम एक सेम होना चाहिए कि जो नीचे कोचिंग हो रही है वही ऊपर मिड में भी हो रही है, वो विमेंस में भी होती है, वो मेंस में भी हो रही है. तो मैंने तो इस नीयत से काम किया था. पाकिस्तान में ही होता है कि जहाँ पे आप एक बंदे को देख लेते हो, आप कहते हो यार ये मेरे ऊपर कहीं ना आलू रखता है, तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हो. जब मैं पीसीबी में गया तो मिसबा वगैरह थोड़े से ना वो हो गए अनसिक्योर, क्योंकि मिसबा नेशनल टीम का हेड कोच था. ऑल ऑफ अ सडन नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की एक टीम बन गई, जिसमें मोहम्मद जाहिद, मैं, मोहम्मद यूसुफ, उमर रशीद, तकलैन मुश्ताक, फिर नदीम खान हमारा डायरेक्टर, फिर ग्रांड बैटमैन. तो हमारी एक टीम बन गई. अब ये टीम के हाथ में सारी अथॉरिटी थी, पाकिस्तान की कोचिंग की भी और अंडर 19 की भी, विमेंस की भी. विमेंस की नहीं, सॉरी, विमेंस का तो अलग था, तो विमेंस का उन्होंने साइड में रख दिया, और डोमेस्टिक की, पूरी डोमेस्टिक की. तो हमारा एक एक एजेंडा था, और एक वो था कि हमने इस चीजों को ना इम्प्रूव करना है, और कुछ नहीं था हमारे लिए. तो हम ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे थे. मगर वो देखा पाकिस्तान टीम के साथ कैंप लगते थे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो पहले 2 दिन मैं तो खड़ा होकर देखता था कि मुझे कोई किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा. तो मैंने जाके बोला नदीम खान को और ग्रांड बैटमैन को कि यार मेरा रोल क्या है, बेसिकली मेरा रोल क्या है यहाँ पे. मैं आके सिर्फ ऑफिस में बैठ के सुबह से शाम तक 9 से 5 बजे जा रहा हूँ, जब कैंप लगा होता है. आई एम ईगर टू गो देयर एंड डू समथिंग. तो क्या होता था कि पाकिस्तान के प्लेयर भी जो थे ना, उनके भी फेवरेट कोचेज होते थे. नाम नहीं लेना चाहता मैं प्लेयरों का. वो उन्हीं के साथ फील्डिंग प्रैक्टिस करते थे, वो मेरे साथ नहीं करते थे. उनको भी ये था कि यार ये आके कहीं हमारे बंदे को हटा ना दे कहीं. लोगों को इनसिक्योरिटी लगी थी यार. मेरा मकसद पाकिस्तान को हेल्प करना है भाई. मैं तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा यार ग्रांड बैटमैन से मैंने बात की. मैंने कहा नो, दिस इज नॉट वर्किंग राइट. इट इज आवर होम, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर. जो भी यहाँ पे आएगा, हमें उनको डिक्टेट करना चाहिए. वो तो हमें डिक्टेट भी नहीं कर रहे, तो कहना कि साइड में हो जाओ, कुछ ना करो. एनीवे, मैंने फिर पाकिस्तान का जो फील्डिंग कोच था ना, मैंने उससे जाके, अब्दुल मजीद साहब, मैंने जाके उससे मीटिंग रखी. मैंने कहा भाई आओ बात करनी है. मैंने कहा यार बात सुनो, अपने जहन से ही निकाल दो कि मैं तुम्हारी जॉब लेने आया हूँ. मैं यहाँ अपनी जॉब करने आया हूँ, ये मेरी जॉब है, ठीक है ना. और जो मेरा रोल है ना, उस रोल के अंदर तुम अकाउंटेबल हो मेरे लिए. अगर पाकिस्तान की टीम फील्डिंग खराब होगी ना, तो मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ. तो बेस्ट यही है कि हम दोनों मिलकर काम करें. तुम पाकिस्तान टीम के साथ जो करना है करो भाई, मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान टीम की जॉब. मुझे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो मेरा टारगेट है ना, 3 साल का, वो मैंने पूरा करना है. उसमें हम दोनों ने साथ काम करना पड़ेगा. फिर उसकी समझ में आई बात, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो हम लोगों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया. अब उसमें भी कुछ लड़के ऐसे थे, वो फील्डिंग सेशन होता था, तो मजीद जैसे ही बैट और लेके खड़ा आ जाते थे, जैसे ही मैं लेके खड़ा होता था वो साइड में इधर उधर हो जाते थे. तो उनकी, हमारी मेंटेलिटी यार बहुत खराब है साजिद भाई, बहुत नेगेटिव है. हमारे प्लेयर से लेके, कोचिंग स्टाफ से लेके, मैनेजमेंट से लेके, बोर्ड के ऑफिशियल से लेके, हर बंदा जो है ना, वो एक बंदे से जेलस होता है. Atiq bhai, at the moment they're looking at Jason Gillespie as the test coach and Gary Kirsten as the white ball coach. Do coach system overseas. Will this work? देखें, दोनों कोच अच्छे हैं. दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो बहुत अच्छा है. गैलेस्पी ने यॉर्कशायर के लिए बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है ना. एंड देन ही इज वर्किंग रियली रियली वेल. और मैंने बड़ी उसके बारे में बहुत पॉजिटिव फीडबैक सुना है जो उनके करीब है. और गैरी क्रिस्टन का इंडिया के साथ बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है. मगर मेरा सवाल ये है कि इसमें क्या गारंटी है कि ये जाके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता देंगे. ठीक है, पाकिस्तान के प्लेयर्स तो वही हैं. इन्होंने ना जाके पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान में टाइम भी नहीं गुजारना. इन्होंने सिर्फ टूर्स पे आना है. पाकिस्तान में हॉलीडे के लिए एक आध हफ्ते का जो कैंप लगेगा उसमें आ जाएंगे. इन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी जाके नहीं देखना. इनको पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम का भी कुछ बारे में अवेयरनेस नहीं होगी. ये 3 साल में अपने पाकिस्तान से 30-30, 40-40 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेके, बोर्ड को कंगला करके, और रिजल्ट वही आने. मेरा नहीं ख्याल के कोई रिजल्ट चेंज होंगे, क्योंकि हमारे जो नए भी कोचेज आते हैं ना, वो भी जाके ना हमारे प्लेयरों के साथ फिर उस पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं.
मिकी आर्थर आया था तो वो भी आखिरी में यही हो गया था। शुरू में सारे असूलबाजी चली हैं कि जो फिटनेस नहीं होगी उसको घर भेज दिया गया है। मगर मुझे ये भी रिपोर्ट मिली है कि अभी जो न्यूजीलैंड वगैरह में सीरीज हुई थी उसमें फिटनेस ट्रेनर को बोल दिया कि भाई नहीं, आप फिटनेस वगैरह को छोड़ो साइड में, बस आप अपना जो काम करना है वो हल्का फुल्का करो, और वो हमारा काम है, हम किसको खिलाए ना खिलाएं। ये मुझे बड़ी ऑथेंटिक रिसोर्स से पता चला कि ये बात फिटनेस ट्रेनर को बोली गई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिटनेस ट्रेनर को बोला आप खामोश हो जाओ। तो बंदा जब आके एक आध साल काम करता है ना पाकिस्तान में, वो फिर पाकिस्तान की तरह ही हो जाता है। जितने भी फॉरेन कोच आए थे वो सब, उनका हाल यही हो गया था। और मेरा कहना यह है, अगर आप गैरी क्रिस्टन की एक्सपर्टीज लेने चाहते हो तो आप उसको एकेडमी का डायरेक्टर बनाते हैं। जेसन गैलिस्पी को आप एकेडमी का कोच बनाते हैं, बोलो कि यार आओ पाकिस्तान में आके अगले 5 साल के अंदर हमें टैलेंट को देखो और टैलेंट को इम्प्रूव करके दो। आपके एकेडमी के कोचेस उठा लो, मुझे तो पता भी नहीं है कौन एकेडमी में कोचिंग कर रहा है, एकेडमी का कौन हेड कोच है। और इतना हमारे, वाह मैं क्या बोलूं साजिद भाई, एक वसीम खान का दौर था उसमें तो चीजें सही हुई, फिर रमीज राजा आया कि रमीज राजा ने आके भी चीजें करने की कोशिश की मगर उसके तरीकेकार गलत थे। वो बस अपने आप को ही सब कुछ समझते थे। फिर उसके बाद जब उनकी दोबारा से नजम सेठी की लॉबी आई है, उन्होंने आके तो इतने नॉन कॉम्पिटेंट लोगों को बिठा दिया एकेडमी में, आगे ऐसा लग रहा था कोई माफिया के बैठ गया जिसको कुछ ही को पता ही नहीं है। टीवी में उन लोगों को आप प्रमोट करे जा रहे हो, हर टीवी के ना मैच में वो लोग बैठे हुए हैं सूट पहन के, पाकिस्तान के उसमें क्या कहते हैं चेंजिंग रूम के ऊपर जो वीआईपी स्टैंडर्ड्स में बैठे हुए हैं। यार आपको एक बंदे को वहां बैठने के लिए उसके काबिल बनना पड़ता है पहले, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर जितने जितने खेले हुए प्लेयर हैं उनको कोचिंग में आना चाहिए, मगर उसमें भी ये है कि उनको जब तक सीखने की लगन नहीं होगी ना। अब यूसुफ भाई में क्या क्वालिटी है मैं बताता हूँ। यूसुफ भाई इस वक्त जब से हमारे साथ आए ना, वो उस वक्त से सरवाइव कर रहे हैं, वो इस वजह से सरवाइव कर रहे हैं कि वो बड़े ही ऑनेस्ट बंदे हैं और उनको सीखने की लगन है। वो यकीन करो इतना बड़ा प्लेयर है मोहम्मद यूसुफ, वो हमारे साथ बैठ के कहता था यार मुझसे मुझे तो उससे सीखना है, आपस में एक दूसरे से सीखेंगे तो इम्प्रूव होगा। तो इस तरह की मेंटालिटी हमारे कोचेस में बहुत कम है। आपको इस तरह के कोचेस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप गैलेस्पी को भी बुला के देख लें, आप देख लें, मगर साजिद भाई पाकिस्तान की टीम यही है और इसी तरह खेलेगी भाई। यहाँ पे ना आप कप्तान को सारी है ना वो दे देते हो, सारी अथॉरिटी दे देते हो, वो अपनी मर्जी से हर चीज कर रहा होता है। ऐसा यार दुनिया में नहीं होता यार। इंग्लैंड में मैं हूँ क्या, स्टोक और मैकलम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। एक सिस्टम है यहाँ पे, एक यहाँ का सिस्टम है जो चीफ सेलेक्टर है लूक राइट, उसके साथ स्काउटिंग का पूरा नेटवर्क है। हम लोग जाके फीडबैक देते हैं, एक एक प्लेयर की रिपोर्ट बना के देते हैं, ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देते हैं। और हर प्लेयर को जो कंसिडर में आता है ना, उसकी 10 से 15 रिपोर्टें होती हैं एक सीजन के अंदर। और फिर उसके बाद जाके वो टीम का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जाके ये नहीं कहीं ऑफ वहां से उठा के उसको किसी से ना, उसने एक 100 में किसी ने 50 रन कर दिए, 2 50 कर दिए, उसको नेशनल टीम में खिला दिया, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अगर आपको 100 की परफॉर्मेंस से भी देखना है तो देखना कि वो काउंटी क्रिकेट में उसने पिछले साल क्या किया, उससे पिछले साल क्या किया। इंग्लैंड में ऐसे उठा के घर से एक साल के अंदर किसी को नहीं खिलाता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा प्लेयर है मगर डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर है, जो इतने साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन बेचारों की क्या मोटिवेशन होगी फिर इसके बाद, जब पीएसएल की एक दो इनिंग के बाद, एक दो सेंचुरी करने के बाद अगर पाकिस्तान टीम में ये जगह बन जाए, और मतलब ऐसी जगह बन जाए कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप काफी प्लेयर ऐसे हैं, आप देखो। मैं जब था साहिद भाई, मैं एज अ प्लेयर, मेरे हिसाब से अपने एरा में मैं मोइन और राशिद भाई के बाद मैं बेस्ट कीपर था। मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, इस वजह से बोलता हूँ मैं कि मुझे अपनी विकेट कीपिंग में बहुत कॉन्फिडेंस था और मैंने इतनी उसकी प्रैक्टिस की थी कि मुझे कीपिंग में 100% कॉन्फिडेंस था कि मेरे हैंड सिक्योर थे, मेरा फुटवर्क अच्छा था, मेरी डाइविंग अच्छी थी, मैं स्पिन के खिलाफ अच्छी कीपिंग करता था, लग के कीपिंग अच्छी करता था, पीछे कीपिंग करता था, सारी हर चीज़ में मैंने अपनी महारत रखी हुई थी। मगर क्या हुआ कि डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी जहाँ आती थी, एक मैच खिलाया, एक मैच खिलाने के बाद कोई प्लान ही नहीं है कि मुझे डेवलप कैसे करना है। अब एक टेस्ट खिलाने के बाद दूसरा टेस्ट टेस्ट कब खिलाना है, कुछ पता ही नहीं है। खिला दिया बस, हो गया भाई, खेल गया, उसके बाद छोड़ ही दिया, इंजर्ड हो गया मैं वेस्ट इंडीज जाके। वेस्ट इंडीज से मुझे वापस भेज दिया इन्होंने आधे टूर से। उसके बाद 1.5 महीने तक पीसीबी का किसी से मेरे साथ कांटेक्ट ही नहीं कि भाई क्या है। ठीक है, मैं टूर्ना वहां पे कैंप मैच टीम के टूर के दौरान इंजर्ड हुआ, मेरी रिहाब किधर होगी, मेरा कोई इलाज कराओ, मेरी बैक का प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता एक्सरे वगैरह करा के चेक करो, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। बस अल्लाह पे छोड़ दिया मुझे। 1 महीने बाद जाकिर खान साहब फोन करके कहते हो तुम फिट हो गए हो।
मैंने कहा हाँ जी, मैं तो 1 हफ्ते बाद ही फिट हो गया था। अच्छा अच्छा, वो पाकिस्तान ए टीम जा रही है, उसमें तुम्हें भेजेंगे। ये पाकिस्तान टीम का सिस्टम है एक भाई, भाई। तो पीएसएल का आपने नाम लिया तो लाहौर कलंदर्स का जो आपका स्पेल था अंडर आकिब जावेद, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। यार, यार मेरे ख्याल से होता है ना कोचेस के एक अच्छा भी पीरियड होता है कोचेस का, और एक एवरेज होता है, और एक बहुत खराब होता है। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर का जो है मेरा सब में वर्स्ट एक्सपीरियंस था, वर्स्ट। अच्छा, मेरी ये जब पिछले 2018 में मैंने किया, पीएसएल 2016 में स्टार्ट हुई है, राइट? ठीक है ना? तो 2 साल तक ना, जो मेरी सब में फेवरेट टीम बन रही थी वो लाहौर कलंदर ही थी। क्योंकि जिस तरह फवाद राना ने एक हाइप बनाई हुई थी, एक उनकी मुझे मजा आता था, और वो हार रहे थे ना, मुझे अफसोस भी होता था उनके साथ, एक हमदर्दी, एक उनसे ना इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लाहौर कलंदर से डायरेक्ट मुझे ना ऑफर आई, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में पीसीबी में सुई गैस के लिए काम कर रहा था। तो 3-4 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुई गैस का एक कल्चर बना दिया था, एक सुई गैस की एक रेपुटेशन बन गई थी, जहाँ पे हर पाकिस्तान का टॉप प्लेयर सुई गैस से खेलना चाहता था, सिर्फ इस वजह से कि एनवायरनमेंट और कोचिंग स्ट्रक्चर और कोचिंग जो फिलोसफी थी हमारी थी ना, वो प्लेयरों को पसंद थी, वो उसमें खेलना चाहते थे। तो आकिब जावेद को भी बात गई होगी कान तक, क्योंकि काफी वहाँ के जो लड़के हैं, जैसे फकर जमान वगैरह हो गया, और शाहीन शाहीन तो उस वक्त बच्चा था, और कबीर भाई कोच थे, तो इन लोगों को मेरी कोचिंग के बारे में इल्म हो गया था, तो उन्होंने मुझे ऑफर की, तो मैं चला गया। मगर जो मेरे से बातें की थी, जो रोल दिया था, उस रोल को उन्होंने करने नहीं दिया। और हमने तो ये सोचा था कि हम लाहौर कलंदर के लिए कुछ करके, क्योंकि 2 साल से लाहौर कलंदर बॉटम पे आ रही थी, इस साल हम लाहौर कलंदर को ऊपर लेके जाएं, ताकि एक एक हो कि हाँ यार, नया कोचिंग सिस्टम आया है, नए कोचिंग आए हैं, तो उससे फर्क पड़ा। अब उसको हमें अचीव करने के लिए हमें काम करना जरूरी था। तो जब कैंप हमारा लगा, तो उसमें तो हमारा फोकस बिल्कुल सही था, हर चीज अपने उस जा रही थी। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, जब बड़े बड़े तुरुम खान हमारे आए, ब्रेंडन मैकलम और ये टीम, तो वो चीजें चेंज हो गई। फिर पहले मैच में मैंने देखा, पहले मैच में टीम बनी, टीम अनाउंस हुई, हमें पता थी टीम, ठीक है, एक दिन पहले कि ये टीम खेलेगी। एनीवे उसमें लैक ऑफ प्लानिंग थी, हम मैच बड़ा क्लोजली हारे। पता नहीं किससे मैच था, कराची से था या इस्लामाबाद से था, नहीं इस्लामाबाद से नहीं था, कराची से था, या पेशावर जलमी से मैच था, बड़ा क्लोज मैच आ रहे हैं, हमें जीता जीता हुआ मैच था कि हमने दे दिया। हाँ, पेशावर जलमी से था। फिर उसके बाद कराची से हमारा मैच हुआ, उसमें हमने 4 चेंजेस कर दिया, पहला मैच खत्म हुआ 4 चेंजेस। मैंने हैरान हो गया, मैंने कहा यार, एक मैच में आपने एक प्लेयर को ओपन भेजा, अचानक हटा दिया, फिर नया बॉल का बॉलर को हटा के दूसरा रख दिया, कीपर को भी हटा के दूसरा रख दिया। खैर, चेंज कर दिया, हमें टीम नहीं बताई। पहले मैच में टीम पता थी, दूसरे मैच में टीम नहीं पता थी। खेल गई, उसमें भी यही हुआ, हम बड़ा क्लोज मैच हार गए। तीसरा मैच हुआ, उसमें फिर चेंजेस। 3 मैच हम बड़े क्लोज हारे, कि तीनों जीते वाले मैच थे। चौथा मैच हम वन साइडेड हार गए। अ, तो जब तीसरा मैच हम हारे ना, उसमें आपको शायद याद हो, 12 रन चाहिए थे 2 ओवर में। ब्रेंडन मैकलम एज एन ओपनर बैटिंग कर रहे थे 50 रन पे, और 8 विकेट हमारी गिर चुकी थी, शारजा में मैच था। तो 12 रन अगर चाहिए और ब्रेंडन मैकलम बैटिंग कर रहा था, तो 1 ओवर का स्कोर है। एनीवे, मैच फंस गया। 7 बॉलों पर रह गए, नहीं 8 बॉलों पर रह गए 11 रन। यासिर शाह ने चौका मारा, 7 बॉलों पर रह गए 7 रन। यासिर शाह छक्का मारते हुए आउट हो गए, 9वीं विकेट वो गिर गई, ठीक है, नहीं 8वीं विकेट गिरी है। तो खैर, ब्रेंडन मैकलम दूसरे एंड पे थे। तो जब यासिर शाह आ रहा था ना वहां से, तो मैं और कबीर खान ने ऑलरेडी माइंड बनाया हुआ था कि इसकी हमने ऐसी की तैसी कर देनी है। इसने किए क्या कर रहा है, ब्रेंडन मैकलम वहां खेल रहा है, तूने एक चौका मार दिया, 7 बॉलों पे 7 रन रह गए, तो भाई तू सिंगल ले, खत्म कर, या बॉल डॉट कर ले, मैकलम वहां से मैच खत्म कर देगा। उसने मार दिया, 8 विकेटें गिर गई हमारी। यासिर शाह आया, कबीर भाई ने बोला, ओए शाह जी, की कितना सी? कहता जो कप्तान ने बोला वही किया। तो कप्तान ने उसको बोला कि बाउंड्री की ट्राई कर, और 50 रन पे खेल रहे हैं। फिर क्या हुआ जी, ओवर हो गया, आखिरी ओवर में 7 रन रह गए, अब मैकलम के पास स्ट्राइक, तो सभी गेंद कर रहा है, तो आप मैकलम से क्या। और दूसरा बैट्समैन कौन है, वो साइड आर्म बॉलर जो नहीं है,
जो जल्मी से खेल रहा है आजकल, जो साइड से गेंद करता है, मलंगा टाइप की पाकिस्तान में। सलमान इरशाद नहीं। सलमान इरशाद, हाँ हाँ। सलमान इरशाद। सलमान इरशाद बैटिंग कर रहा था, उसका डेब्यू था उसमें, है ना। तो अब एक एंड से ब्रेंडन मैकलम, दूसरे एंड से सलमान इरशाद। ब्रेंडन मैकलम के पास स्ट्राइक है, यू एक्सपेक्ट मैकलम टू हिट द बाउंड्री, राइट, एंड टेक अ सिंगल एंड फिनिश द गेम। मैकलम ट्राई टू स्कोर सिंगल, ठीक है, स्कोर सिंगल, नेली गॉट रन आउट। हम लोग हैरान होकर, हमने कहा ये क्या कर रहा है। एक बॉल जाया हो गई, फिर 7 रन 5 बॉल हो गए, अगली गेंद पे सिंगल फिर लेने की ट्राई की, उसमें मैकलम भी रन आउट होगी। अब हमारी लास्ट विकेट, 7 रन भाई, सलमान इरशाद स्ट्राइक पे आ गए। सलमान इरशाद ने अंग करके यूं चलाई है, छक्का हो गया पॉइंट पे। आपने देखा होगा सुपर ओवर में मैच चला गया था। तो वो उस मैच पे मैंने आर्ग्यूमेंट किया, जब हमारी मीटिंग हुई ना 4 मैचों के बाद, तो उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि भाई इस मैच को हम कैसे, हम वो मैच हार गए सुपर ओवर में, हम कैसे सुपर ओवर तक लेके गए जब हमें 7 रन चाहिए थे 7 बॉलों पे। तो जाहिर बात है, मैं मेरा पॉइंट को समझ के वो क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये अतीक भाई, सिंगल लेने की कोशिश। दो दो हाँ, 2 मिनट बाकी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस लाहौर कलंदर के बारे में बता दो, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, देन आई बेसिकली आई टोल्ड आकिब जावेद really really harsh word, I can't repeat it in there. और मैंने उसको बोला कि भाई यू टेक योर कोचिंग एंड देन दैट्स इट, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू एनी मोर। तो मैंने वो फिर टीम छोड़ दी, क्योंकि देखें मैं, या तो आप है ना बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो ना, तो समझ में भी आता है कि बंदा ना थोड़ा सा, अगर उसका पैसा ऑब्जेक्टिव है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है अपनी चीजों का। मगर हम पैसों के पीछे, मैंने आपको पहले ही बोला, क्रिकेट हमारा पैशन है। लोगों ने पैसे कमाए, मगर अतीक जमान ने नहीं कमाए, क्योंकि वो अतीक जमान की जो ईगो है ना, वो और जो वैल्यूज है, ईगो को का लफ्ज गलत है, वैल्यूज जो है ना, वो वैल्यूज ये कहती हैं कि भाई आपने किसी की खुशामद नहीं करनी, अल्लाह ताला ने जो देना है वो आपको देगा, और वही आपके नसीब में लिखा होगा। तो मैंने उसको सोचते हुए लाहौर कलंदर को थैंक यू किया। मैंने राना साहब से, राना साहब को पता भी नहीं था, मैंने राना साहब को ईमेल करके सारा फीडबैक दिया। उसने बोला कि भाई आपका, जब तक आकिब जावेद कोच है, आपकी टीम का जो है ना बेड़ा गर्क ही रहेगा। तो 2-3 साल तक तो ऐसे ही रहा, तो फिर 1 आध साल ये लोग जीत गए, क्योंकि टीम फिर उन्होंने इस तरह की बना ली थी कि उनके पास प्लेयर ऐसे हो गए थे कि वो फिर, साजिद भाई, पीएसएल जीतने के लिए ना आपको टॉप क्लास कोच की जरूरत नहीं होती, आपको टॉप क्लास टीम की जरूरत होती है। आप साथ में सपोर्ट करते हैं, कोचिंग नहीं होती पीएसएल में इतनी, मगर ये है कि आपने अपना ऑनेस्टी के साथ एक प्लानिंग और एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करना होता है, प्लेयर को एनवायरनमेंट देना होता है, प्लेयर क्लिक कर लेते हैं अच्छे प्लेयर। तो लाहौर कलंदर जिस तरह जीता, मेरे हिसाब से उसमें कोचिंग का कोई किरदार नहीं था। उनके पास प्लेयर ऐसे थे, फखर जमान फॉर्म में था, फिर राशिद खान सिकंदर और क्या कहते हैं शाहीन बहुत फॉर्म में था। तो इन लोगों की परफॉर्मेंस से आउटस्टैंडिंग जीते। डेविड वीजे ने बहुत इनको मैच जिताया। वो विकेट कीपर जो था, वो जो बोल्डी क्या था ऑस्ट्रेलियन का, बेन डंक। हाँ, उसने उस सीजन में जिस तरह जीते थे, उसने भी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो वो इस बात से जीता। बस मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है लाहौर के साथ। तो एंड दैट वाज माय लास्ट एक्सपीरियंस इन पीएसएल। उसके बाद पीएसएल की मुझे कोई आई नहीं। थोड़ा सा मेरी रेपुटेशन को भी खराब करने की कोशिश की थी आकिब जावेद ने और समीन राणा ने, मगर वो हो नहीं सकी उनसे, क्योंकि जो प्लेयर हैं वो मुझे बहुत जानते हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी के I'm working with a top class team which is England, and also I'm working with something Germany where I can make a difference and take the team to the next level.